Hello students, so today we are going to do this chapter 1.4 called Have You Thought of the Verb Have? Fine. Now this chapter is something which helps us to understand where we use have, the verb have. Like it is used in tenses, sentences, grammar and all of such things. Fine. So let us see what does this chapter tell us. How many times do you use the verb have in your conversation or writing? Try to keep a count of it for an hour or so. What do you find? Fine. The one who has written this chapter, the writer is telling us that have you imagined that how many times we use the word have in our conversation? ठीक है. So what is conversation? Conversation is sharing of information or thoughts, right? From one person to another we talk sometimes, like we share our thoughts, तो उसको हम बोलते हैं conversation. तो जो राइटर है वो हमें वही बोल रहे कि आपने कभी सोचा है that have you ever imagined कि जो verb have है वो हम हमारे conversation में या writing में कितने बार यूज़ करते हैं, वो हमको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Fine. Try to keep a count of it for an hour or so. What do you find? कि वो वही बोल रहे that try to keep a count. Now for 1 hour or for 1 or 2 hour, you try keeping a count, that you keep counting how many times you're using the verb have वैसे. And what do you find? कि वो वही हमें बोल रहे हैं that ये जो verb है have, वो 1 घंटे में आप कितने बार यूज़ करते हो उसे काउंट करो, एक काउंट रखो and आपको क्या मिलता है ऐसे. What do you find? Perhaps you have always thought of this versatile verb as an auxiliary verb or a helping verb, as we call it. The helping verb have is used to form what we call present tense, right? Perhaps मतलब क्या? What is perhaps? What does perhaps over here means? शायद हम बोलते हैं, right? So perhaps you have always thought of this versatile verb. Now what does versatile means? Anyone? What does versatile means? Versatile is having many different uses. कि एक ही word को हम बहुत सारे different use, मतलब it can be used to us in many different ways, वैसा उसे हम बोलते हैं versatile. तो perhaps you have always thought of this versatile verb as an auxiliary verb or a helping verb, as we call it, right? अभी verbs सबको पता है क्या होता है, what are auxiliary verbs, what are helping verbs, पता है सबको. Auxiliary verb हम किसे कहते हैं? I'll teach this more of in grammar section, but over here I'll give you an idea that what does auxiliary verb or helping verb means. Fine. So here when we say versatile verb सबको समझा that it is a verb which have many different uses, that you can either use in tenses or you can either use in sentences or normal anywhere. So that is called versatile, that having many different uses, that you can use that one word in many different ways. Fine. So we have thought that this verb have we normally use in versatile verb or we normally use in auxiliary verb or helping verb. What does auxiliary verb means? Anyone? A verb which is used with the main verb, the one which we use with the main verb. We also call it as helping verb, right? So that is known as auxiliary. So what does the writer over here means to say that आपने सिर्फ उतना ही सोचा रहेगा, you must have thought only till that much, that we use this verb have as an auxiliary verb or an helping verb, right? The helping verb have is used to form what we call perfect tense. ठीक है. तो we use this verb have in many sentences to make it a perfect tense, the present one वैसा. ठीक है. समझा यहाँ तक? I'll try speaking in both the language so that English वाले English से भी समझें. If you have some doubts, if you don't understand English, तो हिंदी से भी आपको पता चले. तो हम ये verb have है, verb उसको हम यूज़ करते हैं एज अ परफेक्ट टेंस में, बराबर, कि एक टेंस को पूरा करने के लिए, परफेक्ट टेंस को पूरा करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं. फाइन. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. They have come, I had clean forgotten all about it. Okay. What we call perfect tense, and to make negative sentences, but as a main verb it is used to mean much more than you think. ठीक है.
ओके, आई डिडंट न्यू कि नीचे लाइन है, सो सॉरी. द हेल्पिंग वर्ब हैव इज यूज्ड टू फॉर्म व्हाट वी कॉल परफेक्ट टेंस एंड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. बराबर. तो परफेक्ट टेंसेस के लिए भी हम उसे यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज़ करते हैं. ना व्हाट इज टेंसेस एंड सेंटेंसेस, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. सी, दे हैव गिवन अस एन एग्जाम्पल. दे हैव कम, आई हैड क्लीन फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट. कि क्या बोला है यहाँ पे कि वो लोग आ गए हैं पर मैं तो इसके बारे में कम्प्लीटली भूल गई थी वैसे. सो दे हैव कम. हैव यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एज अ टेंस. दे हैव कम बट आई हैड क्लीन फॉरगॉटन ऑल अबाउट. अभी हैड है ना, व्हाट डज हैड ओवर हियर मीन्स दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हैव. ठीक है, फॉर्म ऑफ हैव. तो ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया है. तो इसमें कैसे दे आर शोइंग अस दैट हाउ वी यूज़ अ वर्ब हैव इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एज वेल एज इन नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल इन टेंसेस. ठीक है, तो दे हैव कम, आई हैड क्लीन फॉरगॉटन अबाउट इट. तो ये हो गया हमारा टेंस वाले फॉर्म में. एंड नाउ टू सी इन नेगेटिव सेंटेंसेस कि वही हैव को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट डज नेगेटिव सेंटेंस मीन? इट इज़ अ सेंटेंस विच इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर, हैज़न्ट. मतलब जिसमें हम एंटी लगा देते हैं ना, उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. फाइन. तो वही सेंटेंस जो हमने ऊपर देखा उसको यहाँ पे नीचे नेगेटिव में कन्वर्ट किया है. देखो, दे हैव कम. ठीक है, तो हैव का नेगेटिव में कैसे हो जाएगा? हैवंट. हैव नॉट नहीं बोलते बट वो नॉट को हम एंटी में लिखते हैं, राइट. तो दे हैव कम वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? दे हैवंट कम. तो ये नेगेटिव में हो गया. आई हैड क्लीन फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट. नाउ आई हैड नॉट नहीं होता, हम हैड नॉट नहीं बोलते, तो वो हैड को हम हैडंट कर देते, लाइक एंटी लगा देते हैं. आई हैडंट फॉरगॉटन इट वैसा. ठीक है, तो हैड को हैडंट किया. तो जिसमें हम ये एंटी या एनओटी, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे वही बोला है दैट हाउ द हेल्पिंग वर्ब हैव इज़ यूज्ड इन टेंसेस. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एज अ टेंसेस यूज़ किया है एंड जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें एज अ नेगेटिव सेंटेंस में द वर्ड हैव इज यूज्ड. समझा यहाँ तक? सिंपल. Here's a few example when we use it frequently. कि यहाँ पे अभी कोई examples दिए जिसमें ये जो have word है ना उसको हम frequently use करते हैं. आज के लिए आप activity में वही रखो that what do, you just keep wondering that how many times you use the word have. Fine. Let us see the further examples. In the following sentences, have indicates possession or ownership of something. ठीक है, तो अब यहाँ पे they have given us few examples जिसमें we are using the verb have as a possession or a ownership. तो have में जैसे ownership मतलब कोई ऐसा sentence यूज़ करेंगे जिसमें मैं कुछ बताऊँगी कि ये चीज़ मेरी है, that I own it वैसा, and then the word have is used. ठीक है, तो देखते हैं. लेट अस सी वेयर एंड वेयर इट इज़ यूज्ड. द फर्स्ट वन इज़ माई फ्रेंड हैज़ अ पेट कैट. ठीक है, माई फ्रेंड हैज़ अ पेट कैट. नाउ यू विल से मैम हम तो यहाँ पे हैव देखने वाले थे कि हैव सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे वी डोंट हैव द वर्ड हैव. सो बच्चे लोग यहाँ पे जो हैव है ना, यहाँ पे हैज़ है, राइट. तो हैज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ हैव. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंसेस. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन इज़ ये होता है कि हैव और हैज़ को पॉजिटिव में लेते, लाइक हैव वर्ड है या हैड वर्ड है ना वो पॉजिटिव में आ जाता है एंड प्रेजेंट टेंस में आ जाता है, वेयर इज़ हैज़ हम पास्ट में ले लेते वैसा. ये सब ग्रामर के टर्म्स है, बट लेट नॉट गो मोर इनटू इट और एल्स यू विल जस्ट गेट कन्फ्यूज्ड. यहाँ पे कैसे एक चीज़ याद रखो कि हमेशा हैव तो रहेगा एंड अगर हैव नहीं रहा ना तो उसके बदले हैज़ होगा, HAS हैज़ होगा, विच इज़ वन फॉर्म ऑफ हैव. ठीक है, अब यहाँ पे देखो माई फ्रेंड हैज़ अ पेट कैट. अब यहाँ पे क्या हो गया? पोजेशन हो गया. पोजेशन इज़ व्हेन यू से यू हैव द राइट टू समथिंग, वैसा राइट ऑफ समथिंग. वैसे कि माई फ्रेंड हैज़ अ पेट कैट मतलब क्या कि उसका उसके ऊपर राइट है. तो पोजेशन मतलब वही हो गया. व्हेन वी से ना आई हैव, व्हाट डू वी से हिंदी में अधिकार बोलते हम वैसे, तो उसको हम पोजेशन बोलते हैं कि माई फ्रेंड हैज़ अ पेट कैट. तो वो उसका पोजेशन हो गया कि उसका अधिकार है उसके कैट पे वैसे. तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ हैज़.
आई हैव अ न्यू पेन, ठीक है, आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नई पेन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एज अ ओनरशिप हो गया कि मेरी पेन मैं ओन करती हूँ वैसे। तो यहाँ पे हैव एज एन ओनरशिप यूज़ हो गया। आप लोग भी कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हो वेर यू आर सेइंग, when you are using as it as a verb, when you are using verb have as a ownership. I can say that I have a, what do I say, I have a stall of books वैसा। तो when I'm owning it, when I'm owning my books वैसे वैसा, समझा। डू यू हैव अ साइकिल, तो ये कैसे क्वेश्चन टाइप में हो गया, डू यू हैव अ साइकिल वैसा। तो हैव यहाँ पे यूज्ड हुआ। फिर आर स्कूल हैज़ 6 कंप्यूटर्स, तो वापस यही हैज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो मैंने बोला हैव यूज़ नहीं होगा तो उसके बदले हैव यूज़ होगा, अरे हैव यूज़ नहीं होगा तो उसके बदले हैज़ यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी वही, पर यहाँ पे ये वापस ओनरशिप का हो गया कि डू यू, आर स्कूल हैज़ 6 कंप्यूटर्स। तो ये लोग बोल रहे कि हमारी स्कूल 6 कंप्यूटर्स को ओन करती है वैसे। तो ये यहाँ पे ओनरशिप के फॉर्म में हो गया। द म्यूनसिपैलिटी हैज़ 6 वैन्स एंड 2 कार्स, हैज़ वापस के उनके पास 6 वैन्स और 2 कार्स है। तो यहाँ पे भी ये एज अ ओनरशिप यूज़ हो गया, समझा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज़ आवर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वर्सेटाइल वर्ब है। वर्सेटाइल मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ओनरशिप और पोजेशन में ये वर्ड हैव यूज़ होता है। नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड हम उसमें यूज़ करेंगे। we also use have to refer to events, activities and experience। तो पहले वाले में देखा हम possession और ownership में यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे to make, like to relate to events or activities वैसे। Let us see the first one, I am going to have a bath in the river। तो ये एक एक्टिविटी हो गई, राइट, दैट आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ इन द रिवर, मैं जा रहा हूँ रिवर में नहाने के लिए वैसा। तो हैव यहाँ पे यूज्ड हुआ, समझा। सेकेंड, लेट अस हैव अ पार्टी फॉर योर बर्थडे, ठीक है, ये इवेंट हो गया, ऊपर दिया है ना इवेंट, एक्टिविटीज या एक्सपीरियंस में, तो ये इवेंट हो गया। लेट अस हैव अ पार्टी फॉर योर बर्थडे के लेट अस एन्जॉय अ पार्टी फॉर योर बर्थडे। तो हैव वापस यहाँ पे एज एन इवेंट यूज़ हो गया। द क्लास हैज़ अ शॉर्ट ब्रेक एट 11, कि यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे द क्लास हैज़ अ शॉर्ट ब्रेक। तो ये एक्सपीरियंस हो गया कि ये हमेशा होता रहता है, हमेशा 11 बजे एक शॉर्ट ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हैज़ नहीं, हैव यूज़ नहीं हुआ है बट हैज़ यूज्ड हुआ है, अ फॉर्म ऑफ हैव, समझा। डिड यू हैव अ गुड टाइम एट योर वेडिंग, क्वेश्चन हो गया। डू यू हैड अ गुड टाइम, आपने एंजॉय किया वेडिंग में, तो वापस हैव यूज्ड हो गया। तो ये एक इवेंट के तरीके में क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है कि वो इवेंट में आपने एंजॉय किया क्या वैसा। आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, ये वापस एक एक्टिविटी हो गई कि मेरी एक मीटिंग है अभी शाम को। तो इसमें भी वर्ड हैव यूज्ड हुआ। तो समझा, पहले हमने देखा कि कैसे हम उसको अलग अलग पोजेशन या ऑब्सेशन में यूज़ कर सकते, ओनरशिप में यूज़ कर सकते, सॉरी ऑब्सेशन नहीं। अब हमने देखा कि कैसे उसको एक्टिविटीज़ या इवेंट्स में वी कैन यूज़ द वर्ब हैव। तो दिस इज़ what the meaning of versatile is, that having many different uses, कि हर sentences में have हम आसानी से यूज़ कर लेते हैं। अब next है, in some cases have is used to indicate relationships, कि कोई कोई cases में क्या होता है to indicate the relationships, to show relationships have word is used, समझा। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। आई हैव 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पे वो रिलेशन बता रहा है कि मेरे पास 2 बहनें हैं वैसा। तो हैव यूज्ड हो गया। द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन, के वो कपल को चिल्ड्रन नहीं है, तो वापस ये रिलेशनशिप हो गया और उसमें वर्ड आया हैव। एंड द लास्ट वन इज़ आई डोंट हैव अ ब्रदर, तो इसमें वापस रिलेशनशिप बता रहे कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, तो वहाँ पे वापस हैव आ गया, समझा यहाँ तक। तो इट इज़ यूज्ड इन इंडिकेटिंग ओनरशिप और पोजेशन, और यू कैन यूज्ड इट इन डिस्क्राइबिंग इवेंट्स या एक्टिविटीज़, और यू कैन यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप्स वैसा। अब यहाँ पे फर्दर वी ऑल्सो यूज़ हैव टू रिफर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कि या तो हम खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, उसमें भी वी यूज़ द वर्ब हैव। हाउ, लेट अस सी, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, तो वो बोल रहे दैट वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, तो यहाँ पे भी द वर्ड हैव इज़ यूज्ड। फिर वो हमें पूछ रहे कि हैव अ स्लाइस ऑफ केक, तो वापस खाने से रिलेटेड है, उसमें भी हैव यूज्ड हुआ। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी,
तो यहाँ पे भी खाने से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या चाहिए आपको, टी या कॉफ़ी, तो वापस हैव यूज्ड हुआ। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट रिक्वेस्ट के साथ साथ यहाँ पे मटीरियल मतलब खाने से रिलेटेड है वैसा, दैट कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, वो रिक्वेस्ट कर रहे कि क्या आप मुझे थोड़ा पानी दोगे, वैसा। समझा। तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एक ही वर्ड हैव को वर्ब को यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे किसी का मेडिकल या फिजिकल कंडीशन डिस्क्राइब करने के लिए भी हम हैव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सी, आई हैव अ हेडेक, मैं बोलती हूँ ना आई हैव अ हेडेक, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो हैव आ गया। ही हैज़ कोल्ड, के उसको सर्दी या ज़ुकाम हो गया है वैसा, तो हैज़, वापस हैज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ हैव। समझा। या तो हैव यूज़ होता है या तो उसका जो फॉर्म है हैज़ वो यूज़ होता है। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक, कि ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक आ गया, तो हैड वापस यूज्ड हुआ। अब देखो मैंने बोला था हैव नहीं तो हैज़ यूज्ड होगा, ये हम कभी यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, बट पास्ट में हैज़ और हैड, ऐसे भी हैड भी यूज़ होता है, तो ये हैड में आ गया, ये ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक वैसे। समझा। तो ये सारे में हमने देखा कि हाउ इट इज़ यूज्ड एज अ वर्सेटाइल वर्ब, के कैसे हम बहुत सारे उसको एक्टिविटीज़ या बहुत सारे सेंटेंसेस में वर्ब हैव को यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी इन सेंटेंसेस वेयर हैव इज यूज एज अ मेन वर्ब। ठीक है, इन सेंटेंसेस वेयर हैव इज यूज एज अ मेन वर्ब, इट इज़ ऑलवेज यूज इन द सिंपल प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, ये देखो जब भी हम हैव को यूज़ करेंगे ना एज अ मेन वर्ब, तो या तो वो कभी भी सिंपल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या तो पास्ट में होगा वैसा, या तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड इन सच केसेस, या तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा कि या मैं कुछ कर रही हूँ वैसा, या तो मेरा वो हो गया, जैसे हमने पहले देखा था ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक वैसे, तो वो पास्ट में यूज़ हो गया, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में विल यू हैव समथिंग वैसा। बट यहाँ पे अभी देखो द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म इज़ नॉट यूज्ड इन सच केसेस, कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है ना, कि जो मैं अभी कर रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बेटा लोग क्या आता है, इज़ आता है, एम आता है, आर आता है, कि आई शी इज़ डूइंग, तो उसमें हम हैव नहीं यूज़ करते वैसा। इज़ एम आर ये जो 3 वर्ड है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं, तो उसमें हम हैव वर्ब नहीं यूज़ करते। समझा। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स सो यूल अंडरस्टैंड। अभी देखो यहाँ पे दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स जो रॉन्ग है, जो वो हमें बता रहे हैं, दे आर शोइंग अस दैट वी कैन नॉट यूज़ द वर्ब हैव एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दैट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। आई एम हैविंग अ बाईसाइकिल, ऐसा हम नहीं बोलते, राइट। हम क्या बोलते, आई हैव अ बाईसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हैव को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ बाईसाइकिल क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट में हो गया कि हाँ मेरे पास बाईसाइकिल है, बट मैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बोल सकती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको क्या बोला, क्या क्या आता है, इज़ आता है, एम आता है और आर आता है, तो मैं एम यूज़ नहीं कर सकती। देखो यहाँ पे एम यूज हुआ है कि आई एम हैविंग अ बाईसाइकिल, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम वर्ब हैव यूज़ नहीं करते। समझा। ही इज़ हैविंग अ कोल्ड, इट इज़ कम्प्लीटली अ रॉन्ग सेंटेंस, ही हैज़ कोल्ड आता है, जो वापस हमने पहले देखा कि या तो हम हैव को सिंपल प्रेजेंट या तो पास्ट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पास्ट में आ गया दैट ही हैज़ कोल्ड, दिस इज़ द राइट सेंटेंस। ही इज़ हैविंग अ कोल्ड ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, जो रॉन्ग सेंटेंस है। एंड लास्ट वन इज़ आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, ये वापस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, जो रॉन्ग हो गया। एम इज़ एम आर में हम कभी भी हैव यूज़ नहीं करते। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। समझा यहाँ तक, सिंपल टू अंडरस्टैंड।
समझा कहाँ पे हम हैव को यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम नहीं यूज़ करते। हम हमेशा उसको या तो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं या तो पास्ट में यूज़ करते हैं, बट कभी भी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते। सिंपल, समझा यहाँ तक। सिमिलरली इट इज़ नॉट यूज्ड इन द नेगेटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म एज अ मेन वर्ब, कि उसको हम एज अ नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि ही हैज़न्ट अ कार, ठीक है, ही हैज़न्ट अ कार रॉन्ग आ गया। हैज़ को हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, बट उसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि समझा, पहले हमने उसको देखा नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ये लोग ने हैज़ को यूज़ किया था या हैव को यूज़ किया था, ठीक है, बट उसको एज अ नेगेटिव इसमें लिया था, सेंटेंस में लिया था, हैव का नेगेटिव नहीं किया था। यहाँ पे देखो ये लोग ने हैव का नेगेटिव किया है। ही हैज़न्ट अ कार, ठीक है, ही हैज़न्ट अ कार ये रॉन्ग हो गया। ही डजंट हैव अ कार ये राइट हो गया, बराबर। तो इसके मतलब कैसे, अगर हमें उसको नेगेटिव में हम उसको यूज़ नहीं करते, बट वी ऐड अ ऑक्सिलरी डू करके, देखो, टू इंडिकेट द नेगेटिव वी यूज़ द ऑक्सिलरी डू अलॉन्ग विद द मेन वर्ब हैव, ठीक है। तो हैव को हम यूज़ करते हैं बट उसका नेगेटिव नहीं करते, वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, बट उसके साथ हम ऑक्सिलरी डू डालते हैं टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ही हैज़न्ट अ कार इज़ अ रॉन्ग वर्ड सेंटेंस, बट उसमें हमने डू डाला, डू को नेगेटिव किया, तो डू डाला, ही डू हैव अ कार ये सेंटेंस हो गया, डू को नेगेटिव किया, ही डजंट हैव अ कार। समझा लॉजिक। आई हैवेंट अ कोल्ड, तो ये वापस रॉन्ग हो गया। आई हैवेंट अ कोल्ड को पहले पॉजिटिव में करेंगे, आई हैव अ कोल्ड, एंड फिर हैव को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आई डोंट हैव अ कोल्ड, ऑक्सिलरी डाला हमने डू, डू का ऑक्सिलरी डाला तो आई डू हैव अ कोल्ड, ऐसे हो गया। डू को नेगेटिव किया डोंट, आई डोंट हैव अ कोल्ड। समझा यहाँ तक? समझा, सिंपल टू अंडरस्टैंड। बाकी का जो लॉजिक है कैसे यूज़ होता है वो मैं मोर आपको ग्रामर में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हैव फन एक्सप्लोरिंग द यूजेस ऑफ हैव, तो वही बोल रहे, देखो यहाँ पे भी हैव आ गया प्रेजेंट हम कंटिन्यूस में, तो वो वही बोल रहे राइटर कि नाउ यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन विच वी यूज्ड वर्ब हैव, तो हैव फन कि नाउ व्हेन यू यूज द वर्ब हैव keep exploring that where do you use the verb have in sentences, वैसा। Simple to understand. They said us that we used have in simple present or past, but we don't use it in present continuous. समझा यहाँ तक? That was the main logic, where and where it is। फिर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे कि कैसे have को वर्सेटाइल वे में यूज़ किया गया है, कि बहुत सारे वेज में यूज़ किया गया है। वी सॉ इन एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटिंग, फूड से रिलेटेड रिप्रेजेंटिंग जो था उसमें देखा हमने, नेगेटिव में कैसे यूज होता है, पॉजिटिव में कैसे यूज होता है वो देखा। समझा? सो दिस वॉज शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर विच एक्सप्लेन्ड अस द meaning of how we used have the verb have in so many sentences. So yeah guys, that was it for today's chapter. I hope you enjoyed it and you understood it. If you have any doubts, write it down, and then we'll meet you in the next session. Till then, bye bye and take care.